It's not just surgery, and it's a far beyond that what we are looking at. Surgery is a small step towards a patient's recovery, but we in medicine has come a little bit forward when it comes to understanding a problem. एक भी के डाइटरी कंट्रोल में एक बात देखना चाहिए, जो भी ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट रहते हैं उनको ज़्यादा चने की जो चीज़ें रहती है। Hello and welcome to Honestly Speaking with 360 Plus, your companion to holistic healing. I'm your host Anjana, and through this series, we're exploring every aspect of osteoarthritis to help you manage your health better. At 360 Plus, we combine the wisdom of Ayurveda with the best of modern science to bring you expert-backed strategies for long-term joint health. Today, we're focusing on the connection between sports injuries and osteoarthritis. How do past injuries affect your joints as you age? And how can you continue with sports while ensuring that your joints stay protected from long-term damage? So to talk to us about all of this, we have with us today Dr. Sajir Usman, who is a skilled sports surgeon and has helped countless athletes recover from injuries. And we have with us Dr. Vinayak Tayade, an Ayurvedic specialist in holistic joint care. Dr. Usman is also associated with SportsMed, which is a center in Parel and works with, you were telling me, Dr. Usman, that you work with a lot of the football clubs. Is that correct? Yeah, we cater to majority of the football teams in India. Like as in we are connected with the majority of the clubs from north and the Middle Eastern part of India. Right. And we are also associated with majority of the kabaddi teams, pro kabaddi especially, and some of the wrestling groups which are there located in Delhi, UP, Haryana, where the real wrestling population belongs. I see. But Yeah. SportsMed doesn't have facilities in other parts of the country. No, we are a single facility based in Mumbai. Lucky for us. Yeah, we are based Right. in Lower Parel. Right, thank you. So, Dr. Usman, I read somewhere that MS Dhoni had a knee injury, or he had knee pain rather, and he never complained about it. Attended every single match, never spoke about his knee injury. Now, many athletes tend to push past the pain, and especially in a place like India, which is, where we place so much emphasis on stoicism. You don't see a lot of athletes complaining about their pain. Also, I'm sure that you're possibly familiar with that their schedules are so tight that it's often something that you don't want to look at. You just sort of keep pushing it off. Can this not be very damaging for them, especially when it's sort of when we talk about how it leads to OA? So I think the key over here is we need to tell the athletes to listen to their body. And when they do listen to their body, they find that these symptoms, if it is a niggle that comes up on a single day of training or sport, and we are looking at this niggle passing off in 48 hours and you resuming your normalcy in 4 days and getting back to sport in 7 days, and at elite level getting back to pro sports in 15 days, we are looking at ignoring the problem. But majority of the times when this small niggle keeps coming back to you, that's when sports surgeons like us can come in and really help you. Like I can quote an example. Like an elite cycling athlete who had a minor pinch in his right hip. He was going on cycling. He continued cycling for roughly around 3 months with the same pain. The niggle, some rehab, the niggle, some conservative, and back on track. But the real attention that we have to give to our patients, and we have to really be clear with that, is we are available to understand the problem much better. Like with an MRI or an investigation currently, we have a complete photograph of the hip to really understand where and what the problem is. And in this athlete, we found a small lesion, like a gut. That is called a gut, usually. Like a knot, yeah. Like a knot in the yeah. front of the hip, which was just sitting there and irritating his hip the moment he was going onto his cycle handlebar. Right. So this is a very simple thing, and we could clearly see it, and we can really draw the line. This is where we need to treat them without surgery or with surgery.
Right. And were you able to treat this So this was cyclosis? clearly a case for a minimally invasive surgery, which I am a specialist in. I do arthroscopic surgery, which is essentially a tiny camera into the joint of attention and treating disorders. That's what we are specialists in. Sports see. surgeon means mainly that. Right. And treating athletes with minimally invasive procedures so that they can get back to their sports as fast as possible. So the only thing that this athlete needed was two tiny poke holes, roughly around 3 millimeter to 4 millimeter, go in, take the lesion, and exit out. And he was back to his national level cycling in roughly around 3 to 4 months. That's lovely. That's great to hear. And Dr. Tehri, in fact, हम धोनी के बारे में बात कर रहे थे और मैंने पढ़ा था कि धोनी भी आयुर्वेद यूज़ करते हैं. तो जो when Ayurveda prescribes massages, कुछ पंच करना कहते हैं इसको, और also herbs like अश्वगंधा है, टर्मरिक है, गुगलू है, और तो ये जॉइंट हेल्थ के लिए महत्वपूर्ण होते हैं. सही. बेसिकली क्या रहता है, इसको हम आयुर्वेद में संधिगतवात कहते हैं. ये नी जॉइंट का रहता है, उसमें ऑस्टियो आर्थराइटिक चेंजेस फॉर्म हो जाते हैं. यानी नी जॉइंट में डिजेनरेटिव चेंजेस निर्माण हो जाते हैं, वहाँ ऑस्टियोफाइटिक चेंजेस निर्माण होते हैं, वहाँ मेनिस्कस लिगामेंट में टेयर हो सकता है, ऑस्टियोपोरोटिक चेंजेस निर्माण हो सकते हैं, ऑस्टियोफाइटिक चेंजेस निर्माण होते हैं, ये नंबर और ऑस्टियोपोरोटिक चेंजेस निर्माण होते हैं. ऐसी डिफॉर्मिटी अगर निर्माण होती है तो सबसे पहले आयुर्वेद क्या कहता है कि ये कौन सा रोग है, तो वायु का रोग है. वायु में क्या होता है, तो ड्राइनेस निर्माण हो जाता है, वहाँ का जो फ्लूइड रहता है वो फ्लूइड ड्राई हो जाता है और बेसिकली वहाँ स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी निर्माण होती है. आयुर्वेद में दो प्रकार बताए गए हैं, एक स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी एंड फंक्शनल डिफॉर्मिटी. तो स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी में हमने जो देखा है कि ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस निर्माण होना, मेनिस्कस या क्रूसेंट लिगामेंट में टेयर हो जाना या स्ट्रेन हो जाना या उसमें स्वेलिंग आ जाना या साइनोवाइटिस की कंडीशन निर्माण हो जाना, इस प्रकार की डिफॉर्मिटी जो है हमें स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी में दिखाई पड़ती है. फंक्शनल डिफॉर्मिटी क्या रहता है कि चलने के बाद पेन होता है, जॉइंट में क्रिप्टेशन आ जाता है, आवाज आती है, जिसको आयुर्वेद में लिखा है हंति संधि शूल आटोप करोति. हंति मीन्स स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी एंड फंक्शनल डिफॉर्मिटी. शूल मीन्स पेन हो जाता है, चलने के बाद पेन बढ़ जाता है, नीचे बैठने के बाद पेन हो जाता है, सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद पेन हो जाता है, चलने साइकिलिंग करने के बाद पेन हो जाता है. ये पेन होता है एक्सर्सल पेन जिसको कहेंगे. तो इसकी जो कॉजेस रहते हैं, ये कॉजेस के बारे में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अभी आपने बताया कि धोनी जी क्रिकेटर है. हाँ, तो इनका जो ये है कि एक्सेसिव चलना, एक्सेसिव रनिंग करना, ये वायु को प्रकोपित करने वाला पॉजिटिव फैक्टर्स है. एक बात. दूसरा, अपना डाइटरी देखना चाहिए, हम डाइट क्या लेते हैं. बेसिकली आयुर्वेद ज़्यादा डाइट के ऊपर ज़्यादा डिपेंड है. इसमें हम कहते हैं कि पथ्यम ही आरोग्य मूलम, पथ्य ही आरोग्य का मूल है. तो हम इस प्रकार की डाइट लेते हैं कि आजकल का जो जंक फूड आया है, ये जंक फूड जो है हमारे हेल्थ को खराब करने वाला रहता है. सेकंड थिंग क्या, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, फ्रीज वाटर अगर लेते हैं तो निश्चित ही ऑस्टियोआर्थराइटिस या जॉइंट पेन हो सकता है. ज़्यादा एक्सेस क्वांटिटी में अगर हम नॉनवेज लेते हैं तो उसके कारण भी हो सकता है. दोपहर को खाने के बाद सोते हैं, उसके कारण भी आगे चलकर वायु की बीमारी हो सकती है. तो नंबर ऑफ कॉज जो है आयुर्वेद जो बताया है कि स्पेसिफिकली पर्टिकुलर एक रीजन में, बम्बई में रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, तो नागपुर में रूमेटॉइड आर्थराइटिस नहीं होगा, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये अपने देश, अपने जो रीजन जो है उसका इफेक्ट अपने बॉडी के ऊपर होता है. एक कारण. हाँ, ये बम्बई में जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, वो बम्बई का जो डैम्प क्लाइमेट है उसका परिणाम हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर होता है, और उसका असर आगे चलकर पूरे मेटाकार्पल जॉइंट्स वगैरह जो है, इसमें स्वेलिंग आ जाती है, स्टिफनेस हो जाता है, पेन होता है और रेडिएटिंग पेन होता है. इस प्रकार की डिफॉर्मिटी या फंक्शनल डिफॉर्मिटी निर्माण हो जाती है. तो इस प्रकार की कंडीशन में हमें एक बात देखना चाहिए कि स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी इसमें वायु दो प्रकार का है, एक ऑब्स्ट्रक्टिव टेंडेंसी वाला और एक डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसी वाला. अगर डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसी वाला है तो हमें क्या करना चाहिए, तो बेसिकली वहाँ तेल लगाना चाहिए, क्योंकि वहाँ का फ्लूइड कम हो गया ना, वहाँ का जो फ्लूइड जिसको आयुर्वेद में श्लेषक कहते हैं वो कम हो गया है, वात बढ़ गया है.
तो ये जब वात बढ़ जाता है यानी उसमें ड्राइनेस निर्माण होता है, वो ड्राइनेस कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तेल लगाना चाहिए। हाँ, अभी तेल जो बताया है कि हर एक की प्रकृति अलग अलग रहती है। आयुर्वेद में प्रकृति इंपॉर्टेंट रहता है और प्रकृति एज इंपॉर्टेंट रहता है। अगर 65 के बाद रहता है तो वायु का आधिक्य ज़्यादा रहता है, और वहाँ हम नारायण तेल का प्रयोग कर सकते हैं, सहचर तेल का प्रयोग कर सकते हैं, दशमूल तेल का प्रयोग कर सकते हैं, प्रसारणी तेल का प्रयोग कर सकते हैं। अब ये तेल क्यों यूज़ करना चाहिए? फ्लेक्शन एक्सटेंशन अगर बराबर नहीं होता है, स्टिफनेस निर्माण हो जाता है, जॉइंट क्रिपिटेशन आ जाते हैं, जॉइंट क्रिपिटेशन आ जाता है तो नारायण तेल का यूज़ करेंगे। फ्लेक्शन एक्सटेंशन बराबर नहीं होता है तो प्रसारणी तेल का प्रयोग कर सकते हैं। स्वेलिंग ज़्यादा है तो दशमूल तेल का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार के तेल से हम लोकल मसाज करते हैं और उसके बाद स्टीम देते हैं। और स्टीम देते समय एक बात देखना चाहिए कि ये जो स्टीम जो है बेसिकली नी जॉइंट में जहाँ जहाँ फंक्शनल डिफॉर्मिटी निर्माण होती है वहाँ ज़्यादा यूज़ होता है, जहाँ जहाँ स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी होती है वहाँ कम यूज़ होता है। तो ये स्टीम जिसको हम नाड़ी स्वेद कहते हैं, नाड़ी स्वेद, नाड़ी स्वेद यानी उसमें कंटेंट्स रहते हैं, हर्बल ड्रग रहते हैं, जैसे कि दशमूल क्वाथ रहता है, निर्गुंडी आप कहते हैं, निर्गल निगल बोलते हैं, ये रहता है, और शेवगा। ये ऐसे 3 प्रकार के द्रव्य जो है उसका काढ़ा तैयार करके उसका जो स्टीम जो है हम उसके ऊपर देते हैं। बेसिकली ये स्टीम जो है एनाल्जेसिक है, एंटीइन्फ्लेमेटरी है, और ये जो है हर लोकल एप्लीकेशन करेंगे। आप कह रहे हो, सॉरी सर, अगर मुझे यहाँ पर दर्द है तो इसी भाग को तेल इसी भाग में पहले तेल से मसाज करेंगे। हाँ, तेल तो से मसाज मुझे स्टीम नहीं लेना, यहाँ पर यहाँ लेना है। ओके, वो जो लेते हैं वो अस्थमा में लेते हैं। यहाँ ले सकते हैं क्योंकि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस अगर फॉर्म हो जाता है जी, टेनिस एल्बो हो जाता है, हाँ टेनिस एल्बो होता है, कार्पल टनल सिंड्रोम हो जाता है तो हाथ के ऊपर स्टीम ले सकते हैं या मसाज कर सकते हैं, या लंबर स्पॉन्डिलोसिस हो जाता है। बेसिकली क्या रहता है, जहाँ जहाँ ऑस्टियोआर्थराइटिस चेंजेस निर्माण होता है या डिफ्यूज बल्जिंग हो जाता है, इंटरवर्टेब्रल स्पेस जो रहती है वो डिजेनरेट हो जाती है। डिजेनरेट जब हो जाती है बेसिकली L4, L5 और S1, इसमें जब डिजेनरेशन हो जाता है, हड्डी घिस जाती है, दब जाती है, तो पेशेंट चल नहीं सकता, भाग नहीं सकता, और उस वक्त पेन एग्रेवेट हो जाता है। फॉरवर्ड बेंडिंग करते समय भी पेन होता है, बैकवर्ड बेंडिंग करते भी पेन होता है, चलने के बाद भी पेन होता है। अगर स्पॉन्डिलोलिथिसिस की कंडीशन अगर रहेगी, वर्टेब्रा थोड़ा सा अपना स्पोर्ट्स अपन बॉलिंग करते समय या कभी भी कोई चीज़ उठाने के बाद अचानक लेते हैं या हेवी लोड लिफ्ट करते हैं तो बेसिकली वर्टेब्रा जो थोड़ा हो जाता है, अरेंजमेंट हो जाता है, मीन्स स्पॉन्डिलोलिथिसिस की कंडीशन निर्माण होती है। और उस प्रकार के कंडीशन में भी हमें क्या, हम चल नहीं सकते, पेन नहीं था, तो एक्सरसाइज स्टॉप करना पड़ता है। रेस्ट इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर ऑस्टियोआर्थराइटिस। Doctor, would you agree? Dr. Usman, rest is the best medicine for osteoarthritis? No, with all due respect for Ayurvedic, and मैं हमेशा आयुर्वेदिक पे काफ़ी रेस्पेक्ट करता ही हूँ, and I believe that You were talking about how you believe in holistic. correct. Holistic का बहुत ज़्यादा importance है हमारे patients के treatment पे. It's not just surgery, and it's a far beyond that what we are looking. Surgery is a small step towards a patient's recovery, but we in medicine has come a little bit forward when it comes to understanding a problem. Like जैसे सर ने बोला कि meniscus tear किस तरीके का tear है, whether it is a flap tear, a radial tear, a bucket-handle tear, or a degenerative meniscus tear, ये identify करना, it is possible with now today's investigations, and we get a clear photograph of that structure, and we can really understand कि ये patient, ये आपका जो pain है, जो inner side में meniscus का related pain है, वो flap tear है, वो particular range में होता है, particular action में होता है, then this is definitely something that we can treat with minimally invasive procedures. अगर हमको लगे कि इसमें एक हद से ज़्यादा, जैसे सर ने बोला, जो डिजेनरेशन एक हद से ज़्यादा जो 50 के आगे पेशेंट्स होते हैं, इसमें सर्जरी या मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी का ज़्यादा कोई रोल रहता नहीं। जो स्पोर्ट्स सर्जन्स का रोल रहता है उसमें कोई ज़्यादा रोल रहता नहीं, बिकॉज विथ डिजेनरेशन, जैसे मैंने बोला, हम लोग इंटीरियर डेकोरेटर्स जैसा है, हम लोग अंदर जावे, कोई छोटे से स्ट्रक्चर उसको साफ सफाई करे और बाहर आवे, दैट्स डेफिनेटली रिजल्ट तो मिलेंगे। बट अगर बिल्डिंग एकदम जूना है, जैसे मुंबई के काफ़ी बिल्डिंग्स हो, तो उसको खाली रीडेवलपमेंट का काम होता है और उसमें इंटीरियर डेकोरेशन का कोई काम नहीं होता। Right.
So it really depends on the state of the injury and the Correct. condition. और इस दौरान जो सर का ट्रीटमेंट मोडालिटीज है हमारे मेडिसिन में काफी स्प्लिट हो गया है. लाइक वी वर्क टुगेदर एज अ टीम नाउ. जैसे वी हैव अ सर्जन like me, and we have a sports physiotherapist, a rehab specialist who can bring the patient out with specific exercises conditioning those group of muscles. Example, agar medial meniscus ka pain hai, you can improve the strength of the hip abductor and the quadriceps and relieve the pain without surgical intervention. And we also have a radiologist with us. जैसे एक एरिया में ही पेन है, radiologist can keep a probe or a scan and introduce a small amount of drug only in that location so that you don't have to pop pills, and which reaches everywhere and destroys your system. And uske alawa we have people who can get the patient back to sport, like athletic coaches and strength and conditioning coaches, who can really see as to how they are performing on field and give the specific exercises for their activity. Like जैसा एक बैडमिंटन एथलीट हो और उसको वापस बैडमिंटन खेलना चाहते हो, what kind of stretching and flexibility you should do on field to get back to that level, and what kind of training करना चाहिए. And at the end of all this, we also have chiropractors, osteopaths, which are essentially the guys who release the muscles and bring it to normal. और उसके अलावा जो आपने बोला sports nutritionist, psychiatrist, ये सब हमारी टीम में उपलब्ध है जो सब मिलके एक खिलाड़ी को 100% optimum कर देते हैं. Yeah, that whole emphasis on holistic healing. You mentioned badminton, you talked about a cyclist earlier. I wanted to ask you, are there certain sports that sort of predispose athletes to sort of put them at greater risk of injuries, and especially and then injuries then eventually lead to osteoarthritis, right? And so I'm not talking about now even pro athletes, but even young children participate in sports, and I'm not saying they shouldn't, it's great for them, but are there certain sports which then one can expect, okay, that there's a greater chance of so developing? If I assess the number of patients who comes to me, the majority of the injuries happens during football. Okay. Be it children or grown-ups, jo especially in Mumbai, with all the turfs and with all the grounds which are not so great, and the training on them can itself, trigger injuries. And it's not the sports itself which is the cause of the injury. But you're right about it. Some sports have a high velocity, jumping, twisting, pivoting, cutting, which happens in sports like football, and which has a lot of weight loading on the knees, like in wrestling or powerlifting. These are occupational hazards. Right. They are bound to get injuries. So and then all the athletes know that when they are in that unko injury hone wala hi hai. Yeah. But then there must be something that you would recommend that they do in terms of whether it's exercises or consumption of maybe supplements or supporting it with yoga, flexibility, something else so that can be here done. is where at my clinical assessment, I see patients holistically. Right. Like I'll quote an example. A 40-year-old gentleman came to me with a significant pain post-sport. And the only thing that was lacking in him is when he bends forward, he cannot touch his toes. And when he lies on his tummy, he cannot bend his knees backwards. The only thing that was lacking in him was muscle flexibility. And he had to work on his muscle flexibility. Stretching the muscles to bring back the adequate length in itself can prevent injuries on field. Absolutely. So holistically speaking, for us is starting from foot alignment. How you have a flat foot, or you have a good foot, which is good enough to wear such high heels, or you have a decent arch or not, can load the knee, can load the hip, can load the back. So our assessment starts from there. A patient in standing is what I see first. How good a musculature you have. Have you lost your strength? वो काफी है क्या comparatively? Have you lost your flexibility? Have you lost your normal core mobility or mobility anywhere? Then comes a nutrition. एकदम पतला खाड़ी पहलवान जैसा लोग खेलने के लिए जाते हैं, कुछ खाते नहीं है, खाली चिप्स खाते हैं. जैसे सर ने बोला आज के बच्चे लोग चिप्स खाते हैं, बर्गर खाते हैं, और उनको जाके फुटबॉल खेलना है. तुम्हें उनके माँ पिता से I just ask their parents, like, what kind of food are you giving them? We give him a lot of food. That's not what he eats. So look at yourself in the mirror and have an assessment of yourself. What is the kind of structure you have got?
So this kind of assessment by yourself, evaluation in terms of muscle, bone, strength, itself can give you a rough idea as to what I can play. That itself will prevent injuries. So general assessment of yourself. That's fascinating. Thank you so much, Dr. Tayari. आयुर्वेदा में दिनाचार्य ऐसे कुछ होता है, डेली रूटीन. हाँ, डेली रूटीन रहता है. हाँ. दिनचर्या, so रात्रिचर्या, ऋतुचर्या. OA पेशेंट के OA जो ओए का ऑस्टियोआर्थराइटिस पेशेंट जो रहता है, उनके लिए आप हाँ, बताएं. ऑस्टियोआर्थराइटिस के जो क्या पेशेंट होना रहते हैं, एक तो पहली बात है कि जो बम्बई में जमता नहीं है, 7 बजे तो हम खाना खा नहीं सकते. हम नौंगी है. आप मुंबई के बारे में क्यों कह रहे हो? तो दिल्ली में बताता हूँ मैं कहाँ पर आप आपको. जल्दी खा के सोते एक बात बताता हूँ, क्योंकि अपनी जो सराउंडिंग एरिया है, अपनी जो लाइफस्टाइल जो है आजकल बहुत ही, लेकिन आयुर्वेद ने जो बताया है कि शाम को 7 बजे खाना खाना चाहिए, 9 बजे सोना चाहिए. एक बात, सुबह 5 बजे उठना चाहिए, मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, योगासन करना चाहिए, और 8:30 या 7:30 बजे ब्रेकफास्ट करना चाहिए, और 12:30-1 बजे तक खाना खाना चाहिए. खाने में एक बात है कि आजकल जो खाना जो आ रहा है वो इतना ठीक नहीं. जैसे पहले हमारे ज़माने में जो खाना था और अभी का जो खाना ये सब है, गुआवा और पेरू इतना बड़ा ना? तो अभी क्या है, खाना इतना अच्छा नहीं, जिसके कारण न्यूट्रिशन जो होना चाहिए वो प्रॉपर न्यूट्रिशन होता नहीं है. आयुर्वेद में एक बात है कि जब हम मेडिकेशन करते हैं, अगर कहीं भी इंजरी रहती है तो रोकने के लिए हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कंट्रोल करने के लिए ट्रीटमेंट कर सकते हैं. अगर इंजरी आ गई है तो 2 प्रकार की मेडिसिन हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि एक आयुर्वेदिक सूत्र बताया है, जीवो जीवस्य जीवनम. एक दूसरे का दवाई रहती है, एक दूसरे के जीवन रहता है. तो इसमें एक सिद्धांत रहता है कि अगर हम बकरे का जो बोन मैरो अगर लेते हैं, बकरे का बोन मैरो, तो उससे जो इंजरी हो गई है वो कंट्रोल हो सकती है, कम हो सकती है. मैंने समझा था आयुर्वेदा सब वेजिटेरियन है. नहीं, अजास्ती पाया भस्म, अजास्ती भस्म नाम को बताया है कि जो हमारा फीमर रहता है, बकरे का फीमर जो रहता है, उसके अंदर की जो बोन मैरो है, उसके हम क्या करते हैं, उसका घी तैयार करते हैं, घी पिलाते हैं, उसका भस्म तैयार करते हैं, वो भस्म खिलाते हैं. यानी जो आयुर्वेदिक मेडिकेशन जो है, जो न्यूट्रिशनल है, जिसमें अश्वगंधा देना चाहिए, श्रृंग भस्म, ये जो अपने श्रृंग रहते हैं ना, हरिण का सिंह, उसका भस्म तैयार किया जाए, कुकुटत्व भस्म, यानी ये जो भस्म है, जो अपना शेल रहता है ना, एग ऊपर का जो कवर रहता है, उसका भस्म तैयार करते हैं, कुकुटत्व भस्म, अजास्ती भस्म. और कुछ ऐसी मेडिसिन जो है जो मेटालिक रहते हैं, जैसे रौप्य भस्म, रजत भस्म, सिल्वर का भस्म रहता है. ये भस्म जो है न्यूट्रिशन जो है बढ़ाने वाले थे. यानी आयुर्वेद में एक बताया है कि जहाँ जहाँ डिजेनरेटिव चेंजेस हो जाते हैं वहाँ वहाँ ये दवाई देनी चाहिए. सेकंड थिंग, गुगुल का जो प्रयोग बताया गया है, जहाँ जहाँ स्टिफनेस ज़्यादा रहता है, स्वेलिंग ज़्यादा रहता है, पेन ज़्यादा रहता है, उस प्रकार के अवस्था में बेसिकली गुड़ का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि गुड़ जो है एनाल्जेसिक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, क्योंकि स्वेलिंग कम करता है, पेन कम करता है, स्टिफनेस कम करता है, फ्लेक्सिबिलिटी रहता है, मोबिलाइजेशन करता है. तो ये गुगुल का प्रयोग, और गुगुल में भी बेसिकली कौन सा, बबुल के द्वारा तैयार किया हुआ गुगुल. बबुल के जो झाड़ रहते हैं ना, हम पेस्ट लगाते हैं ना, बबुल पेस्ट, वो जो बबुल जो रहता है उसके द्वारा तैयार किया हुआ जो आभा गुगुल, जो फ्रैक्चर को ठीक करता है, जो टेयर को कम करता है, जो डिजेनरेशन रोक देता है. तो ऐसे आभा गुगुल का या डिसलोकेशन जब हो जाता है, उस समय लाक्षा का गुगुल, लाख जिसको कहेंगे, लाक्षा गुगुल का प्रयोग करते हैं. लेकिन लोकल ट्रीटमेंट अगर हम करना है हमें, तो बेसिकली नी जॉइंट में अगर स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी निर्माण होती है तो वो स्टॉप करने के लिए, रीजनरेट करने के लिए नहीं, तो स्टॉप करने के लिए जानुबस्ती का प्रयोग करते हैं. अभी जानुबस्ती क्या होती है, जिसके द्वारा पेन कम हो जाता है, जिसके द्वारा डिजेनरेशन रुक जाता है. तो क्या करेंगे, ये जानुबस्ती के ऊपर हम इस प्रकार कैसा गोल तैयार करते हैं, आटे का गोल तैयार करते हैं, और आटे का गोल तैयार करने के बाद उसमें हम क्या करते हैं, ऑयल डालते हैं. धीरे धीरे 20 या 25 मिनट्स में वो ऑयल एब्सॉर्ब हो जाता है, और वहाँ जो डिजेशन हो रहा है वो कम हो जाता है. एक बात. सेकंड थिंग, जब भी कभी फंक्शनल डिफॉर्मिटी हो जाती है, जैसे अपन देखते हैं कि टेंडनाइटिस फॉर्म हो जाता है, बर्साइटिस हो जाता है,
हाँ, कैल्कोटेंडाइटिस वो जो होता है, तो उस प्रकार के अवस्था में वो स्टिफनेस या स्वेलिंग कम करने के लेप लगाते हैं। आयुर्वेद में लेप की प्रक्रिया बहुत बताता ही है, क्योंकि लेप लगाना चाहिए। तो कौन सा लेप लगाना चाहिए? जैसे कि मेथी है, राई है और हल्दी है। इसका लेप लगाएंगे तो वहाँ का स्वेलिंग कम हो जाता है, स्टिफनेस कम हो जाता है, पेन कम हो जाता है और पेशेंट चल सकता है। आपने कहा राई, हल्दी, मेथी, राई और हल्दी। मेथी, राई और हल्दी। हाँ। तो मेथी इज फेनुग्रीक। फेनुग्रीक, हाँ। राई इज मस्टर्ड हाँ, सीड्स हाँ, एंड हल्दी इज हल्दी। टर्मरिक। ये इसका लेप लगाते हैं। जब स्वेलिंग ज़्यादा हो जाता है, इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होता है, नमनेस यहाँ अपने ये जो डिस्कलरेशन हो जाता है, उस समय लीच का प्रयोग करते हैं, लीच थेरेपी। क्योंकि Okay. इन्फ्लेमेटरी चेंजेस जब निर्माण हो जाते हैं, सीवियर पेन हो जाता है, स्टिफनेस निर्माण होता है, स्वेलिंग कम हो जाता है, जो लीच लगाने के बाद वो क्या करती है, तुरंत वहाँ का जो इम्प्योर ब्लड जो है वो सक करती है और तुरंत वहाँ का पेन सबसाइड हो जाता है। दिस इज द इमरजेंसी ट्रीटमेंट दर्द नहीं फॉर होता है? साइनोवाइटिस। नहीं होता है। सो सर ने जो वेरी इंपॉर्टेंट बहुत चीज़ें की बोला है, इट्स फ्रॉम इयर्स ऑफ हिज एक्सपीरियंस। सर के काफ़ी पॉइंट्स मैं अपने प्रैक्टिस में इंक्लूड करता ही हूँ। नंबर 1, 7 बजे के बाद से पहले जो जैन फिलोसफी है, दैट्स आई फील इज द बेस्ट मेथड इन टर्म्स ऑफ डिसिप्लिन। 7 बजे खाना खा के सो जाने से, आई डो नॉट नो व्हाई, वो मैं पूछना चाहता हूँ, बट पेशेंट्स को काफ़ी एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट। Yeah, I also find I sleep early, I eat early, and तो I find ये that मेरा very पेशेंट्स का रेगुलर एडवाइस रहता है, नंबर 1। नंबर 2, जो सर ने पर्टिकुलर चीज़ों का लाइक मेथी, जो फेनुग्रीक का यूज बोलते हैं, माई ओन मदर इज सफरिंग फ्रॉम ऑस्टियोआर्थराइटिस सिंस लास्ट 15 years एंड शी हैज नॉट अंडरगॉन अ जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी। वो रोज फेनुग्रीक लेके पानी में उबाल के she does something with it and keeps on drinking. And this is the same thing that I also suggest to my patients कि आप ऐसे modalities of treatment कर लीजिए rather than English medicines. जो आयुर्वेदिक medicines है, it has a much better philosophy. Number 3, जो आपने यूरिक एसिड के हिसाब से जो बोला पेशेंट्स को, मैं रेगुलरली बताता हूँ, अपनी दवाइयाँ जो है वो एक बार लेने से हर साल वापस लेना पड़ता है। उससे अच्छा है नेचुरल तरीके, इंक्रीज वाटर इनटेक, पानी का पीना ज्यादा बढ़ाओ। दैट्स व्हाट वी लैक इन आवर लाइफ। नंबर 2, अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक में 1 टेबलस्पून ऑथेंटिक देसी घी, दैट विल प्रिपेयर योर गट। 1 tablespoon. 1 tablespoon ghee in empty stomach if you can, Yeah. if you are palatable for it. Yeah. और आजकल इसका भी मॉडर्न वैरायटी आया है, उसको बोलते हैं बुलेट कॉफी, जिसमें ब्लैक कॉफी में घी डाल के ले सकते हैं। दिस इज फॉर द मॉडर्न पीपल। If they are unable to palate that ghee, you can put it in your black coffee and drink it. It has definitely anti-inflammatory properties. And this is my regular advice rather than allopathic medicines. मैं How इसमें ज़्यादा interesting. बिलीव रखता हूँ। How interesting. एक देखिए, डाइटरी कंट्रोल में एक बात देखना चाहिए, जो भी ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट रहते हैं उनको ज़्यादा चने की जो चीज़ें रहती है, चना जो है, वाटाणा जो है, मटकी जो है, दही है, बैंगन है, बटाटा है और अचार है, ये चीज़ें क्या पेन करने वाली रहती है, इन्फ्लेमेशन निर्माण करने वाली रहती है, वात को बढ़ाने वाली रहती है, स्वेलिंग निर्माण करने वाली रहती है, तो ये थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। और कॉफी और चाय? इतना नहीं, इतना वो पित्त को बढ़ाने वाली रहती है। सर मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। लाइक अगर हम लोग कोई पेशेंट्स हमसे बोलते हैं लाइक व्हाटएवर इज खट्टा, हाँ, जो हमारे मुंह में अच्छा नहीं लगता और बिटर लगता है, ऑब्वियसली हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होगा। बिटर या सावर? सावर, सॉरी आई गॉट इट Sour, रॉन्ग। हाँ। सो जो सावर रहता है ऑब्वियसली हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होगा। या डज इट रिलेट? या क्योंकि ये जो है, जैसे अपन बोलते हैं कि कर्ड जो रहता है, कर्ड और बटर मिल्क दोनों अलग अलग है। कर्ड क्या है? इन्फ्लेमेशन निर्माण करने वाला है, स्वेलिंग निर्माण करने वाला है, स्टिफनेस निर्माण करने वाला है, एपेटाइट लो करने वाला है। लेकिन बटर मिल्क जो रहता है, जिसमें खट्टापन नहीं है, वो रिकमेंडेड है, हाँ रिकमेंडेड है, बटर लेना मिल्क। चाहिए। और इतना लेना चाहिए जिसको हम बोलते हैं कि मीठा छाछ, जिसमें खट्टापन नहीं आया है। इतना सा 1 चम्मच हम दही लेते हैं और उसमें 1 ग्लास गर्म पानी डालते हैं, और उसका जब हम छाछ तैयार करते हैं, वो एपिटाइजर है, एंटीफ्लेमेटरी है, एनाल्जेसिक है, डाइजेस्टिव है। इतना अच्छा है कि उससे पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक हो जाता है
और डाइजेशन एकदम क्लियर हो जाता है और किसी और हाइपर एसिडिटी आज का जो प्रॉब्लम है वो कम हो जाता है। बेसिकली आईबीएस के पेशेंट के लिए, आईबीएस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के जो पेशेंट रहते हैं उसके लिए छाछ बहुत ही अच्छा रहता है। बेसिकली हम जो लोग करते हैं, जो सिरोटिक लीवर के पेशेंट रहते हैं, सिरोटिक लीवर के जो पेशेंट रहते हैं उनको सिर्फ छाछ के ऊपर रखते हैं। इवन पानी भी नहीं देते हम पीने के लिए, प्यास लगती तो छाछ पी लो। करीबन हालांकि हमने काफ़ी पेशेंट उससे ट्रीट किया है। No, it has definitely got relevance because Yeah. अगर हम लोग inflammatory bowel disease के बारे में Yeah. बात करें, it has got high connection towards causing inflammation in the joints. IBS related rheumatic वात का problem रहता है, and I think all of them, whatever we put into our body has got something to affect our Oh, joints. absolutely. और अगर हम लोग अपने ऑस्टियोआर्थराइटिस या रोमैटिक आर्थराइटिस को कंट्रोल में रखना चाहते हैं, वी हैव टू हैव अ स्ट्रिक्ट न्यूट्रिशनल control or a check on what we put into our mouth. So, also in the same vein, when we're talking about holistic practices, what about exercises like yoga, Pilates? What is it that you would recommend to people who came to you with, say, maybe even the early stages of OA, or even maybe stage 2 or stage 3 of OA? What would you recommend? So the other day, I like examples. I Yes, like always examples. we all love examples. So please, yes. I had a patient who walked into my clinic. He is a triathlete, which means वो cycling, swimming और running तीनों का साथ वाला event करने वाले हैं, और ये मेरे clinic में regular है, और वो मेरे पास आए थे. He is roughly 42. And he is finding that since recently, when he started to engage in active sports, he is getting this grueling groin pain. And काफ़ी सोच लिया है, काफ़ी लोगों ने बात किया उससे, किसी ने बोला हर्निया है, किसी ने बोला थाई पेन है, ये बोन पेन है, बट मैंने उसको एग्जामिन किया. His whole body was so stiff and tight कि स्पोर्ट्स तो क्या, वो घर में एक सिंपल धनुरासन में भी नहीं बैठ सकते. धनुरासन में, भुजंगासन में. धनुरासन मुझे तो basically धनुरासन क्या है वो useful मालूम in नहीं है. ankylosing spondylitis. What is धनुरासन? So if धनुरासन, Squat? अगर हम लोग YouTube में साइड में एक वीडियो दिखा सकते हैं धनुरासन का, it is just stretching the front chain of your body, and the same reverse stretching also happens. We sometimes prefer giving this yoga. मेरा regular recommendations है मेरे patients को. In fact, जो कमर पकड़ के हमारे patients आते हैं, उनके rest period के बाद, the first thing that I tell them to do is yoga. This is from another example of my own friend who had a large disc prolapse, and he was suggested to go in for surgery. And he was so young. I told you try yoga, and he came out of it so beautifully well. Of course, वो सही प्रोसेस करना चाहिए. इम्पोर्टेंट है, जो प्रॉपर करेंगे तो ही. और एक बात मैं यहाँ नोट करना चाहिए, जहाँ भी किसी भी पेशेंट को अगर स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी रहती है तो वहाँ योगा करते समय बहुत ही केयर करना चाहिए. सब मैक्सिमल. योगा अभी काफी डाइवर्स हो गया. पावर योगा है, अयंगार योगा है, हठ योगा है. आउट ऑफ दिस, नॉर्मल योगा, हठ योगा, अयंगार योगा वेरी सेफ. ये जो पावर और मिक्सड वैरायटीज ऑफ योगा करते हैं वो हमेशा हमारे क्लिनिक में आते रहते हैं. तो आप मत कीजिए वो सब. पावर योगा एक बात है कि जहाँ स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी रहती है ना, वहाँ अवॉइड करना चाहिए, ऐसे मेरा कहना है. जी. क्योंकि फंक्शनल डिफॉर्मिटी में चलेगा, फ्लेक्शन में स्टिफनेस वगैरह रहेगा तो उसमें हम कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चरल में अवॉइड. लोगों को, बट एथलीट्स को क्या, दे वांट टू गेट एक्टिव एंड हेल्दी वेरी फास्ट. हमारे पास सुबह 15 मिनट है, तुरंत आके हमको कैमरा के पीछे बैठना है, तो हमको जल्दी काम करना है, तो वी हैव ओनली वन ऑप्शन, do something very fast. Yes. But yoga is very slow, and when I suggest to my young patients, वो yawn करने लगते हैं. तो I always tell them around 40 plus, अभी आपके पास ऑप्शन नहीं है. इसके लिए मैंने टाइमलाइन डिवाइड किया. 40 to 50 take care of your flexibility. 50 to 60 athletes take care of your bone health. 40 के बाद अपने फ्लेक्सिबिलिटी पे ध्यान रखें. 50 के बाद अपने हड्डियों के ताकत पे. That's true for anyone, I would say, not just anyone. It is a general rule. It's a very general rule. As long as you're an athlete. अगर घर में बैठते हो तो कुछ जरूरत नहीं. अच्छा. But if you're looking at being there, going outdoor, doing activities, ये ध्यान रखना ही चाहिए.
और आयुर्वेद में कोई ऐसी एक्सरसाइजेज या मूवमेंट्स भी होती है? होती है ना। एक बात है कि ओए के लिए एनीथिंग स्पेसिफिक? ऑस्टियोआर्थराइटिस में धीरे धीरे फ्लेक्शन एक्सटेंशन करना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस है उसके लिए भी फ्लेक्शन एक्सटेंशन करना, लेकिन जिसको कुछ पावर योगा बोलते हैं ना, फास्ट करना, एक्सेस क्वांटिटी में करना, वो अवॉइड करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी एक्सेस अगर करेंगे तो बात बढ़ने वाला है, और बात बढ़ेगा तो रोग बढ़ेगा। बेसिकली हिप जॉइंट में जो प्रॉब्लम होता है वेस्कुलर नेक्रोसिस में, वह हम योगा नहीं कर सकते हैं, हम पद्मासन में नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि ए वेस्कुलर नेक्रोसिस में डिजेनरेटिव चेंजेस ज़्यादा रहते हैं, बेसिकली नेक्रोसिस हो जाता है, और वहाँ अगर हम मांडी डालकर बैठेंगे, पलाटी मारकर बैठेंगे तो पेन एग्रीवेट हो जाता है। इसलिए बहुत बार क्या रहता है, मैंने देखा है कि स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी वाले जो पेशेंट रहते हैं ना, वो कमोड यूज़ करते हैं, नॉर्मल जो अपना जो लैट्रिन वो यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर नीचे बैठ ही नहीं सकते ना, क्योंकि वहाँ स्ट्रक्चर खराबी आ गई है, और लेकिन फंक्शनल डिफॉर्मिटी रहेगी, स्टिफनेस रहेगा, तो उसने बैठना चाहिए, क्योंकि फ्लेक्शन एक्सटेंशन करेंगे तो अल्टीमेटली उसका मोबिलिटी बढ़ जाती है। सो उसको बोलते हैं मलासना, which is sitting on your Yeah, sitting in an yeah. Indian squat position, yeah. जो बहुत ही बेनिफिशियल है, जैसे सर बोल रहे हैं, अपने हिप को और ग्लूट्स का और हिप अडक्टर के फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, बट स्ट्रक्चरल में नहीं करना चाहिए। इट्स एब्सोल्युटली परफेक्ट व्हाट इज सेइंग। बट जैसे आपने वो क्वेश्चन किया, उसका भी एक आंसर मैं भी देना चाहता हूँ। जैसे हमारी मेडिसिन है मोस्टली फ्रॉम 20 years, जो हमारे हमको वी हैव लर्नड, इस सब को कंजर्व करें, यानी कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो एक्टिविटी बंद कर दो। ऐसा नहीं है, ये मैंने सीखा है मेरे मदर से, क्योंकि मेरा मदर मेरा सुनता नहीं है सबके मेरे सुनते नहीं है। सबके तो इधर इसके problem है। लिए वो उनको मैं बोला था आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस, आप एक्सरसाइज मत कीजिए, उसने सुना नहीं, बट अच्छा किया उसने, बिकॉज जो जब से वो एक्सरसाइजेस चालू रखा है, उनका नी को कुछ भी नहीं लगा, वो नीचे बैठ के अपने नी को चेस्ट की तरफ स्ट्रेच करती हैं, वो उल्टा लेट के धनुरासन करने की कोशिश करती है, ऑल्दो इट इज नॉट पॉसिबल, जेंटल, नॉट पावर टाइप्स, जेंटल करती है, वो स्टैंडिंग अपने कोर को और हिप अबडक्टर को स्ट्रेंथन करने की कोशिश करती है, और ये हर रोज सुबह और शाम 20 मिनट किए बिना वो खाना नहीं खाती। एंड दैट इज द डिसिप्लिन विच हैज मेंटेन्ड हर ऑस्टियोआर्थराइटिक नी फॉर हर लाइफ। इसके लिए मैं हर पेशेंट को बोलता हूँ दैट आप दवा ना लीजिए, आप एक्सरसाइज पे फोकस रखिए, वही काफी है आपके लिए। दैट्स फैंटास्टिक। और हम हमारी एक मिथ बस्टिंग की सेक्शन है कि मतलब टेल मी ट्रू और फॉल्स, इफ यू इंजर अ जॉइंट वंस और गेट सर्जरी इट विल नेवर बी द सेम अगेन, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। It's true. So even at childhood, you've injured a joint, it's never going to be the same again. It won't be the same. There will be slight differences. But an athlete can get back onto the field with slight differences because वो mentally strong रहते हैं। उनको ये छोटे मोटे problems ignore करने के लिए उनका मन शक्ति, they are strong mentally to withstand these problems, and that they feel no difference. But even if you take a radiograph, एक्चुअली ये हमने स्टडी किया था अपने क्लिनिक में, दैट वी हैव स्टडीड अपने पेशेंट्स जिसको हमने सर्जरी किया था नी का, एंड दिस वी हैव एनालाइज देम 10 years डाउन द लाइन। हम झूठ नहीं बोल सकते, उनका एक 80% तक, 83% तक टू बी स्पेसिफिक, दैट उनका नी या उनका जॉइंट जो सर्जरी किया है वो ठीक रहते हैं, बट देयर इज अ डिफरेंस ऑफ रफली अराउंड 15 to 17%, which would have been possibly a lot worse if they had not भगवान ने जो किया वो हम नहीं कर सकते, frankly no, but Yeah. we can change the activity of life, because the second question वही स्टडी में ये था कि अगर आपके इंजरी से पहले की एक्टिविटी और अभी की एक्टिविटी कंपेयर करें, where are you at, and most of them told that 92% of them told that they are pre-injury, जो पेन और तकलीफ से वो हमारे पास आए थे उसके पहले के लेवल पे पहुंच पाया है। Fantastic. Yeah. So that's reassuring, obviously. Yeah. Dr. Tayade, आयुर्वेदा कहते हैं कि बहुत बहुत धीरे से चलता है, उसकी इफेक्ट दैट इज़ वेरी स्लो। और जब हम एथलीट के बारे में बात करते हैं, जो स्पोर्ट्समैन है, तो उनके लिए तो
जैसे कि सर कह रहे थे कि उनको योगा कहो तो वो यौन करने लगते, तो उससे वो एक है, आयुर्वेदा में धीरे काम करता है, ये बात गलत है। क्या कंडीशन क्या है, कौन से सिम्टम्स एग्रीवेट होते हैं, जैसे कि हमारे पैल्पिटेशन बढ़ जाते हैं तो हम लॉन्ग एक्टिंग ड्रग दे ही नहीं सकते, शॉर्ट एक्टिंग ड्रग ही दे देंगे वहाँ। या ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन रहेगी, हमारा हार्ट बराबर काम नहीं कर रहा है और सीवियर पेन हो रहा है, तो वहाँ क्या हमने बताया, लीच एप्लीकेशन, ये क्या इमरजेंसी में यूज़ करते हैं, और शॉर्ट एक्टिंग ड्रग के बारे में करेंगे और तुरंत लगाए तो तुरंत रिजल्ट मिल जाता है। हम फॉर्मेंटेशन करते हैं, फॉर्मेंटेशन करने के बाद तुरंत पेन कब सबसाइड हो जाता है, तो इसका मतलब ये लॉन्ग एक्टिंग नहीं है, बल्कि ये शॉर्ट एक्टिंग भी है। लेकिन कई कई ऐसे डिसीज रहते हैं जिसमें हमें शॉर्ट एक्टिंग लॉन्ग एक्टिंग ड्रग देने पड़ते हैं नंबर ऑफ डिसीज में। और आयुर्वेदिक जो औषधि जो मेडिसिन हैं डू नॉट नीड टू बी प्रिस्क्राइब, कोई भी, जैसे सर कह रहे थे कि पीपल में कोई भी खुद आयुर्वेदिक की दवाई खुद ले सकते हैं, उनके नहीं लिए लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? हर एक की प्रकृति अलग अलग रहती है। अभी हमारे जो मोदी जी साहब ने प्रकृति का काफ़ी वो अभियान चलाया था, वात प्रकृति अलग है, पित्त प्रकृति अलग है, कफज प्रकृति अलग है। अगर इंजुरी हो जाती है तो कफज प्रकृति वाला आदमी मानता है ठीक है, क्योंकि उसका जो बल रहता है ना एकदम पावरफुल रहता है। पित्त प्रकृति वाला आदमी जो रहता है वो बोलेगा नहीं नहीं मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत तकलीफ, दवाई करो दवाई करो, यानी उसका जो मन जो रहता है ना एकदम कोमल रहता है, यानी वो डर जाता है तुरंत। कफज प्रकृति वाला डरता नहीं, वो बोलता ठीक होने वाला है, वो करेंगे हम ट्रीटमेंट, धीर गंभीर रहता है। लेकिन पित्त प्रकृति वाला ऐसे नहीं रहता है, वो पित्त प्रकृति वाले को ज़्यादा इरिटेशन ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा गुस्सा ज़्यादा आता है, उसको तुरंत ट्रीटमेंट चाहिए। लेकिन वात प्रकृति वाला ऐसे नहीं रहता है, वात प्रकृति ठीक है करेंगे हो जाएगा, यानी इतना जो दादा ये नहीं करता, ध्यान नहीं देता है, कभी देता है कभी नहीं देता है, ये इरेगुलरिटी जो रहती है वात प्रकृति। ऐसे प्रकार के पेशेंट में हम जब ट्रीटमेंट करते हैं तो हमें एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि उसका कौन सा प्रकृति का पेशेंट है, और उसके ऊपर डिपेंड रहता है, क्योंकि प्रकृति परीक्षण और नाड़ी परीक्षण ये दोनों करना पड़ता है। जी जी। Dr. Usman, if you have advanced osteoarthritis, surgery is the only option, no matter how old you are. Oh, no. Absolutely false. We have a very high हमको घुटने से इतना प्यार है, हम छोड़ते नहीं इतना जल्दी। रिप्लेसमेंट के पास, सर्जन के पास इतने जल्दी हम लोग बताते नहीं जाने के लिए। We really assess the situation. अगर उनको सीवियर पेन है कि वो लंगड़ना पड़ता है, अगर उनको रात को पेन हो जाता है, अगर उनको पेन किलर लेना पड़ता है, अगर उनकी घुटना ना मुड़ता है ना सीधा होता है, अगर उनको एम्बुलेशन चलने में ठीक नहीं लगता है, और अगर वो थ्रू आउट द डे घुटना या जॉइंट के बारे में सोच के बैठे हैं, दैट इज दीज 5 points. If it is there in patients, only then we advise them to go in for a surgery. Because surgery ऐसा नहीं है कि रिस्क नहीं रहता है, हमेशा there are problems with it. So if you have to take these risks into account, इतने तकलीफ होना चाहिए पेशेंट को, only then we advise surgery. And I am known for my conservative nature of patients. काफ़ी patients अहमदाबाद से आते हैं, काफ़ी patients सूरत से आते हैं मेरे को मिलने के लिए, खाली ये सुनने के लिए मेरा नी रिप्लेस करने के लिए रेडी हुआ है कि नहीं. Although it is not my job at all, I still tell them that you can pull along or not. Just based on my clinical examination, I advise this. Sure, absolutely. And stretching, another one for you. Stretching before exercise prevents all injury. 100% true. That's it. 100% That's all that true. one needs to do. This is from another example Yeah. of my own friends who has been playing volleyball with me in our society in Lower Parel. We have been in this for almost 4+ years, the society in where we play. The guys who spend time coming to the field, doing some flexibility on field. मैं बॉल को हाथ लगाने से पहले 15 मिनट में अपने बॉडी को स्ट्रेच करूंगा, वो मेरे क्लिनिक में आते ही नहीं. They don't come to me. They don't have problems, and they are usually fit and active. Right up to 50, मैं बोल रहा हूँ. At 30, at 40, God is kind. You have got natural flexibility, and आपको injuries होते नहीं ज़्यादा. But when you are talking about
वीकेंड स्पोर्ट्स जो मेनली हम लोग करते हैं एज मुंबईकर्स, इफ यू वांट टू स्टे अवे फ्रॉम इंजरीज, वार्म अप वार्म अप वार्म अप काफी इंपॉर्टेंट रहता है. बॉल को हाथ लगाने से पहले स्ट्रेच कीजिए. मैं बोलूंगा, बट काफी पेशेंट्स का कंप्लेन ये है कि उनका टर्फ का टाइमिंग खत्म हो खत्म जाएगा. हो जाता है. It is Bombay. We हाँ. have these issues. हाँ, उनको Yes. टाइम मिलते नहीं है. बैडमिंटन में भी कोर्ट का टाइमिंग इज Yes, you बुकिंग booked your फास्टेस्ट slot. फिंगर फर्स्ट. Yes. तो जिनको वो स्लॉट मिल गया वो बोलते हैं कि अब हमको रैकेट उठाना है. वो सोच के ही आते हैं कि जी. फ्लेक्सिबिलिटी की बात है. Right. And sir, आपको, if you have osteoarthritis, then it's too late for Ayurveda to be helpful or to provide relief. अब मुझे osteoarthritis हो गया, मुझे diagnose हो चुका है कि मुझे वो है, अब आयुर्वेदा कुछ नहीं कर सकता. Yes, नहीं, true or क्या है, false? जब फ्यूजन हो जाता है, जो नी जॉइंट में अगर टोटली नी जॉइंट फ्यूज हो जाता है, उस समय हम उसको सिम्टोमेटिकली रिजल्ट दे सकते हैं, लेकिन क्यूरेटिव ट्रीटमेंट नहीं कर सकते. वहाँ सर्जरी के लिए हम एडवाइस करेंगे. अगर कंप्लीट टेयर हो जाता है, कंप्लीट लिगामेंटम टेयर हो जाता है, तो उसको हम क्या करेंगे, इस पेशेंट को हम सर्जरी के लिए एडवाइस करेंगे. लेकिन कंप्लीट टेयर नहीं है, इनकम्प्लीट टेयर है, और पेशेंट का एज अच्छा है, करीबन युवावस्था में पेशेंट है, तो उस प्रकार की अवस्था में हम उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, दवाई दे के मेडिकल ट्रीटमेंट करके उसको हम ठीक कर सकते हैं. Thank you so much, sir. Thank you, Dr. Usman. Thank you, Dr. Tarani. So, what an interesting session, and we got such fantastic tips. Thank you so much, because so we've uncovered some very interesting things today. Truth about joint health today. Of course, the joint health is not just about treatment, and that's the whole point of this episode. We're looking at what you can do to keep your joints healthy before you start experiencing the pain, or if you're in the early stages of osteoarthritis, what are the different remedies, what you can do to really slow down the progression of osteoarthritis. For more insights in holistic healing, follow us on Honestly Speaking at 360 Plus. We're here to help you take control of your joint health with informed choices. Thank you for watching this. Pass it along to anyone who could use it and who could benefit from it. And let's take this first step towards a pain-free life. Thank you.